اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ یہ میرے ایک بہت پیارے دوست بھی ہیں، سبسکرائبر بھی ہیں۔ آج ہم ان کا پام ریڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے پام سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ انگوٹھا ماشاءاللہ ان کا اچھا ہے، لمبا انگوٹھا ہے، تو اصول پرست انسان ہے، ول پاور بھی ان کی زبردست ہے، پلاننگ بھی ان کی ٹھیک ہے، بدھائی بھی بنی ہوئی ہے، تو روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ سکس سینس ماشاءاللہ ان کی بڑی زبردست ہے، فیس ریڈنگ بہت اچھی کر لیتی ہیں، اور روحانیت، اسپریچولیٹی، یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہیں۔ اب اگر ہم ان کے ہاتھ کی شیپ دیکھیں تو یہ اسکوائر ہتھیلی ہے۔ جب اسکوائر ہتھیلی ہوتی ہے تو ایسے لوگ بڑے محنتی ہوتے ہیں اور اپنی محنت کی وجہ سے ہی زندگی میں زبردست کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر ان کی لائف لائن کو دیکھا جائے تو زندگی کی لائن جو ہے اس کو بے شمار راہو لائنوں نے کاٹا ہے۔ یہ ہوتی ہیں راہو لائنیں، ٹھیک ہے۔ یہ لائنیں جو ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ زندگی بھر ان کی سٹرگل ختم نہیں ہوگی، ان کی ایک ٹینشن آئے گی پھر دوسری شروع۔ تو بچپن بھی ان کا کافی زیادہ ڈسٹرب گزرا ہے، بچپن میں انہوں نے کافی تکلیفیں، ٹینشنیں برداشت کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمیں ان کی جو لائف لائن ہے وہ ہمیں اس طرح سے نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں یہ ایک لائف لائن یہ ہے، اب یہ یہاں سے ان کی یہ دماغ کی لکیر ہے۔ اب اگر ہم اس کو قسمت کی لکیر مانیں گے یوں، پھر یہ اس طرف اگر یہ ٹرن لیتی ہے تو اگر قسمت کی لائن زندگی کی لائن کی طرف اگر یہ مڑ جائے تو انسان کہیں نہ کہیں زندگی میں غلط ڈیسیژن لیتا ہے، غلط فیصلے کرتا ہے، اور ان غلط فیصلوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہ اپنا نقصان کر لیتا ہے، روپے پیسے کا نقصان کر لیتا ہے۔ تو یہ 40 سال کی عمر سے پہلے یہ کوئی زندگی میں غلط ڈیسیژن ضرور لیں گے اور ان غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ اپنا نقصان کریں گے۔ اب پتہ کیسے چلتا ہے کہ جی یہ لازمی اپنا نقصان کریں گے؟ دیکھیں یہاں سے ان کی جو قسمت کی لائن ہے یہ ادھر مڑتی ہے، اور یہاں سے پھر یہ ایک الگ سے قسمت کی لائن یہاں سے سٹارٹ لے رہی ہے۔ تو لازمی بات ہے یہ قسمت کی لکیر کا ادھر مڑ جانا، یہ کوئی غلط ڈیسیژن لیں گے اور پھر یہاں سے قسمت کی لائن جو ہے وہ دوبارہ سٹارٹ لے رہی ہے۔ تو تقریباً 30 سال کی عمر تک یہ کوئی نہ کوئی غلط ڈیسیژن لیں گے، مے بی 30 سے 35 کے درمیان لیں، لیکن 30 سے 35 کے درمیان یہ اپنا کوئی بڑا نقصان کریں گے، اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا۔ اس کے بعد 45 پہ بھی جا کے ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکلات، کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور آئیں گی۔ تو ان کا مین سوال یہ تھا کہ میری زندگی میں بھی بہت زیادہ کرائسس چل رہے ہیں۔ یہ اصل میں نا پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، تو یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آگے کیا حالات ہوں گے۔ ایج بھی ان کی تقریباً 47، 48، 49 کے قریب ہے۔ تو اس حساب سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا کیا سین ہے، کب تک ان کی پرابلم ختم ہوں گی۔ دماغ کی لائن کو دیکھیں تو یہاں پر بھی راہو لائنیں نیچے کی طرف گر رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی ذہنی ٹینشنوں کا بتاتی ہیں۔ اگر دل کی لائن سے کوئی لائن نیچے کی طرف گرتی ہے تو ہمیں کوئی بہت بڑا دھوکہ بھی ملتا ہے، دل ہمارا برے طریقے سے ٹوٹتا ہے۔ تو یہ والا ٹائمنگ تقریباً 45 کے قریب، کیونکہ 2-3 سال اوپر یا 2-3 سال نیچے ہو سکتے ہیں، دل بھی ان کا ٹوٹ سکتا ہے اور کوئی دھوکہ بھی مل سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب دماغ کی لائن جو ہے یہ اندرونی منگل کی طرف لائنیں نیچے کی طرف گرتی ہیں تو ایسے لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، غصے میں فیصلے کرتے ہیں، اور غصے میں فیصلے کر کے اپنی قسمت کو خراب کر لیتے ہیں۔ تو بالکل ان کو اپنی ایگو پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں نا ان کی دماغ کی لکیر اور زندگی کی لائن میں گیپ بھی ہے۔ جب زندگی کی لائن اور دماغ کی لکیر میں گیپ ہوتا ہے تو ایسے لوگ اپنی مرضی کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ ان کی زندگی میں مداخلت نہ کرے، لیکن کبھی کبھی یہ ضد، غصہ، ایگو، ان کے جذباتی فیصلے ان کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو ایک بڑی زبردست سفر کی لائن ان کے ہاتھ میں موجود ہے۔ یہاں پر اس لائن کو کچھ لائنوں نے کاٹا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ بیرون ملک ضرور سفر کریں گے، لیکن سفر میں ان کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پردیس میں جا کے ان کو کوئی خاص کامیابیاں نہیں ملیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، پریشانیاں ضرور آئیں گی پردیس میں جا کے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم ان کی بزنس کی لائن کو دیکھیں تو یہ ساری بزنس کی لائنیں ہیں، یہ والی۔
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इनका जो मनी ट्रायंगल बनना चाहिए था इस तरीके से, वो बन नहीं पा रहा। तो इसका क्या होगा कि 40 साल की उम्र तक जो भी ये पैसा कमाएंगे, वो पैसा ये ज़्यादातर ज़ाया करेंगे, इनके सेविंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन 40 के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ये इन प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, आगे अल्लाह करम करेगा। आगे यहाँ पे आप देखें तो तकरीबन 40-45 के बाद यहाँ पे किस्मत की लाइन भी बेहतर हो रही है, और यहाँ पे ये ट्रायंगल का साइन भी बन रहा है, और सन लाइन भी इनकी अच्छी है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आगे अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, और यहाँ से भी एक लाइन जुपिटर माउंट की तरफ जा रही है, तो ये भी इंसान को कोई ना कोई बड़ी कामयाबी ज़रूर दिलवाती है। अब इनका हम राइट हैंड देख लेते हैं, ये भी इनके लेफ्ट हैंड की पिक्चर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। तो इसमें भी वही तकरीबन लाइनें नज़र आ रही हैं कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। दिल की लाइन से अगर लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो इंसान को दुख धोखे ज़रूर मिलते हैं, और यहाँ पर दिमाग की लाइन को काटा है एक लाइन ने, और किस्मत की लाइन को भी काटा है। तो 40-45 पे जाके इनका एक लॉस होगा, आखिरी लॉस होगा, और उसके बाद उम्मीद है कि आगे ये जो है ना 47 पे भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं, 47 से लेके 50 के दरमियान भी। तो 50 के बाद ही जाके इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतरी आएगी। बहरहाल अब इनका हम राइट हैंड देखते हैं कि राइट हैंड इनका क्या बताता है। तो राइट हैंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी जो शुरू की ज़िंदगी है वो राइट हैंड बता रहा है कि काफ़ी डिस्टर्ब गुजरी है। बचपन इनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में गुजरा है, कम से कम 30-35 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहे हैं, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे भी ज़िंदगी की एक लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और दूसरी फिर यहाँ से ऊपर से शुरू हो रही है, और फिर ये एक लाइन किस्मत की इधर मुड़ रही है। तो अगर आप इसको ज़िंदगी की लाइन भी मान लेंगे, तब भी ये ज़िंदगी की लाइन जब टूट टूट के चलती है, ब्रेक होके चलती है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी ज़िंदगी में दुखों को, तकलीफ़ों को, टेंशनों को बढ़ा देती है। और वैसे भी इनकी किस्मत की लाइन बड़ी ऊपर से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है। तो इसका मतलब ये कि कम से कम 35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में ये स्टेबल नहीं हो पाएंगे। 35 के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, और उसके बाद फिर अल्लाह का करम होगा। और यहाँ पे आप देखें तो ये किस्मत की लकीर आगे जा रही है, और फिर यहाँ से दिल की लाइन से कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, जो कि किस्मत की लाइन को भी डैमेज कर रही हैं। तो 100% इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। इनके 40 से 50 के दरमियान में भी यहाँ पे यके बाद दिगरे इनके दिल को ठेस पहुंचेगी, दिल भी इनका तोड़ा जाएगा। और यहाँ पर भी आप देखें तो बहुत बुरी सूरत हाल है। तो इनके अंदर गुस्सा, ईगो भी बहुत ज़्यादा है, और उस गुस्से ईगो की वजह से भी इनके काम खराब हो सकते हैं, और जज्बाती फैसले कर सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो शुरू में भी कोई सदमा इनको मिला है, या बुरे तरीके से किसी दिली अजियत से ये गुजरे हैं, यहाँ से भी एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है। तो जब यहाँ पर भी दिल की लाइन थोड़ी ब्रेक हुई है, तो लाजमी तौर पर इनका दिल भी टूटेगा, या कोई बहुत बड़ा दिली सदमा इनको मिलेगा तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में। फिर इसी तरह 40 से 50 के दरमियान में भी यहाँ पर भी दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। तो ये इंसान को अपने ही रिश्तों से दुख मिलते हैं, यारों दोस्तों से धोखे मिलते हैं, तो ये इस चीज़ की लाइनें हैं। और यहाँ पर भी आप देखें तो बिजनेस की लाइनें तो हमें नज़र आती हैं, लेकिन ये अपने बिजनेस को बेहतर करने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये लॉस करेंगे अपना, क्योंकि हमें प्रॉपर यहाँ पे मनी ट्रायंगल इनका नहीं बनता नज़र आ रहा। जब तक ये एक बात अच्छे तरीके से आप समझ लें, आपके पास उस वक्त तक दौलत जमा नहीं होती जब तक आपके पास इस तरीके से एक खूबसूरत मनी ट्रायंगल ना बने। ये होती है आपकी बिजनेस की लकीर। ये यहाँ से निकले तो ये मनी ट्रायंगल आपके पास आना चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ से ही एक शोहरत की लाइन अगर ऊपर की तरफ निकल जाए, और यहाँ पे ट्रायंगल बनाइए, ऊपर जाके 3 शाखा हो, किस्मत की लाइन 3 शाखा हो, जुपिटर पे जाके कोई लाइन ऊपर की तरफ उठे, तो ये लाइन अगर आपको मिल जाए ना, तो फिर आप लखपति भी बन सकते हैं, करोड़पति भी बन सकते हैं। और आपके पास जब ये वाला एक मनी ट्रायंगल हो, फिर उसके ऊपर एक और फिर बड़ा मनी ट्रायंगल बना हो, तो फिर कहा जा सकता है कि आपके पास दौलत भी आएगी, रुपया पैसा भी आएगा। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देख लें आप, मनी ट्रायंगल डैमेज है, नहीं बन पाया ना। देखिए ये यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है,
जब मनी ट्रायंगल आपका नहीं बनेगा तो दौलत नहीं जमा होगी आपके पास। 40 साल की उम्र तक आप जो मर्जी कर लें, कैश की शक्ल में आपके पास जो है ना रुपया पैसा नहीं आएगा। आपके पैसे कहीं ना कहीं, चाहे आप प्लॉट खरीद लेंगे वहां पे पैसे आपके फंस जाएंगे, प्रॉपर्टी में आपका रुपए पैसे का नुकसान होगा, लेकिन फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा? फायदा मैं आपको बता देता हूं। फायदा यहां से इनको फायदा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे लॉस भी इनके जरूर होंगे, क्योंकि दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। तो 40 से 50 साल की उम्र में भी खर्चे इनके बढ़ेंगे, लेकिन सेविंग जो है वो करने में मुश्किलात का सामना रहेगा इनको। लेकिन यहाँ पे जाके 50 के बाद यहाँ पे किस्मत की लाइन इनकी बेहतरीन हो जाती है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ सन लाइन भी इनको सपोर्ट करेगी। और यहाँ पे ये रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी के साइन भी इनके हाथ में मौजूद हैं जुपिटर माउंट पे। तो अल्लाह ताला इनको स्पिरिचुअल रूहानियत भी इनके अंदर रखी है, सिक्स सेंस भी माशाल्लाह इनकी बड़ी तेज़ है। और जब आपकी किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन होती है तो यहाँ पे इनके पास दौलत भी आएगी। यहाँ पर ये डबल किस्मत की लकीर हो रही है, और यहाँ पर ये बिजनेस की लाइनें हैं। इनके अच्छे ये अपने क्लाइंट को कायल कर सकते हैं, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में अल्लाह ताला इनको ज़रूर कामयाबियाँ देगा। तो जनाब ये 40 के बाद इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू होगी, और आगे फिर इंशाल्लाह ताला आहिस्ता 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 ये प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। लेकिन कहें कि यकदम प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई प्रॉब्लम सारी ज़िंदगी इनके साथ चलती रहेगी। ये कहें ना कि ये बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाएं, मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल टेंशन फ्री होंगे, क्योंकि इतनी जब लाइनें आपको काटती हैं ना किस्मत की लाइन को, और आपकी सन लाइन भी जब थोड़ी सी वीक होती है, तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में मुश्किलात को, प्रॉब्लम को बढ़ाती है। तो एक तो इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की जरूरत है, अपनी ईगो पर कंट्रोल करने की जरूरत है। जज्बाती फैसले ना करें, जिंदगी के फैसले सोच समझ के करें, तो ये इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो लेकिन कहा जा सकता है कि अब इनका आने वाला टाइम जो है वो इंशाल्लाह ताला बड़ा बेहतरीन होगा। वैसे भी मुझे लग रहा है, आपको याद होगा जब मैंने इमरान खान का जायचा बनाया था, तो मैंने कहा था कि इंशाल्लाह ताला 2025 में पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, इमरान खान के हालात भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगे, और 2026 तक उम्मीद है कि जो खान है ना वो एक अच्छी मजबूत पोजीशन पे खान आ जाएगा। ये तकरीबन सितंबर के 9वें 10वें 11वें महीने तक खान बड़ी अच्छी पोजीशन में आ जाएगा, और इनके खान को बाहर निकाल दिया जाएगा मेरे ख्याल में। जब ज़्यादा देर खान को नहीं रखा जाएगा, तो अल्लाह करेगा पाकिस्तान के हालात भी अच्छे होंगे। उम्मीद है कि आगे इंशाल्लाह ताला 2026 2027 में मुझे इलेक्शन भी होते नज़र आ रहे हैं। 2026 2027 में उम्मीद है कि यानी कि 2026 में भी हो सकते हैं। अगर 2026 में ना हुए तो 2027 में लाजमी इलेक्शन होंगे, और ये गवर्नमेंट जाती नज़र आ रही है मुझे, ज़्यादा अरसा ये मुझे नज़र नहीं आ रही। तो जहाँ तक मुल्क में स्टेबिलिटी की बात है, तो अब ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। हम एक बड़ी ज़बरदस्त डायरेक्शन की तरफ अब पाकिस्तान ने चलना शुरू कर दी है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर होगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी के जो पिछले 2-3 साल गुजरे हैं, ये तो बहुत ही बदतरीन साल थे, क्योंकि जितने लोगों ने भी प्रॉपर्टी का काम किया है वो उन्होंने मुझसे रीडिंग करवाई है, चाहे वो कोई पिशावर से है, रावलपिंडी से है, लाहौर से है। तो पाकिस्तान के हर शहर में प्रॉपर्टी के ये जो पिछले 2-3 साल गुजरे हैं ना, प्रॉपर्टी का बिजनेस बदतरीन जिनके पस्ती की तरफ गया है, नाकामी की तरफ गया है। लेकिन उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर्टी का काम भी बेहतर होगा, क्योंकि प्रॉफिट रेट बैंक ने वैसे भी कम कर दिया, बहुत ही कम कर दिया है। तो अब ज़ाहिर है लोगों ने पैसे जो है वो बैंक से निकलवा के प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करेंगे, लोग अपना घर बनाएंगे, प्रॉपर्टी पे घरों पे अपना सरमाया खर्च करेंगे, ज़मीनों की खरीदो फरोख्त होगी। तो उम्मीद है कि ये प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, तो अब प्रॉपर्टी का काम दोबारा अरूज की तरफ जाने वाला है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो भी बदतरीन इन पर अच्छे दिन नहीं अभी इन पर, तो इंशाल्लाह ताला अब अच्छे दिन आएंगे। 2025 से इंशाल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, और 2026 में मज़ीद अल्लाह का करम होगा। और इसी तरह 2027-28 तक उम्मीद है कि काफ़ी हद तक जो भी ये माशी प्रॉब्लम का शिकार हैं, रुपये पैसे की कमी का शिकार हैं, पेमेंट इनकी फंसी हुई है, ज़मीनें इन्होंने खरीदी हुई हैं,
लेकिन अभी वो सेल नहीं हो रही ठीक रेट पे, तो इंशाल्लाह ताला आगे अच्छा रेट भी लगेगा, आगे इनके माली मामलात भी बेहतर होंगे और अल्लाह ताला बड़ा करम करेगा। बाकी ये बहुत परेशान है, ज़ाहिर है जब इंसान सख्त परेशान होता है तो वो बार बार कहता है, ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि स्टार भाई आप प्लीज़ देखें मेरे कब हालात बेहतर होंगे, कब प्रॉपर्टी का काम बेहतर होगा। तो आप खुद भी देख सकते हैं इनके हाथ की लाइनें, तो यहाँ पे इनकी 40 के बाद हमें किस्मत की लाइन अच्छी नज़र आ रही है, यहाँ पे हमें सन की लाइन भी नज़र आ रही है। तो अल्लाह करेगा कि यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। बाकी ये कि यहाँ पर ये जो गुस्सा इनके अंदर है, ईगो ज़्यादा है, ये गुस्से और ईगो की लाइनें हैं, इन चीज़ों पर इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये जो दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये बताती हैं कि ये जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, जज्बाती आदमी हैं और जज्बात में आके ये अपना नुकसान कर लेते हैं। तो दिल की लाइन से लाइनों का नीचे की तरफ गिरना भी यही बताता है कि ऐसा इंसान के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा होती है और इंसान गलत डिसीजन लेता है। अब अगर हम इनकी लेफ्ट हैंड पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक बड़ी काम की बात बताने लगूँ। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक बड़ी बारीकी से देखने वाली चीज़ है, इनकी जो सैटर्न फिंगर है ये सन फिंगर की तरफ जो है ना वो झुक रही है। जब आप ये सैटर्न की फिंगर अगर बिल्कुल सीधी होगी तो आप जिंदगी बड़ी जबरदस्त तरीके से बड़ी अक्लमंदी के साथ गुजारेंगे, लेकिन जहां पे ये टेढ़ी हो जाएगी, इसका रुख सन की तरफ हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि आप हो सकता है ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश की खातिर, दिखावे की खातिर आप जो है ना वो गलत रास्ते की तरफ चल पड़े, जिनकी दिखावा करें आप, ये हो सकता है आप शोहरत की लालच, अब मेरा नाम हो, मेरा नेम फेम हो, लोग मुझे जाने, लोग मुझे बड़ा सलाम दुआ करें, लोग मेरी बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट करें, और ये चीज़ हासिल करने के लिए आप बेतहाशा पैसा लोगों पर खर्च करना शुरू कर दें, तो इस चीज़ से इनको बचने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह कि जब आपकी सैटर्न की फिंगर टेढ़ी होती है ना, तो ज़िंदगी में आप बड़े गंदे और बड़े गलत फैसले करते हैं, यानी कि आपको जज्बाती फैसले नहीं करने, आपने ये जो दुनिया की लालच है, हवस है, मेरा नाम हो, दुनिया मुझे जाने, मैं ये कर जाऊं, मैं वो कर जाऊं, मेरे पास रातों रात पैसा आ जाए, मैं ऐसे लोग शॉर्टकट भी ढूंढते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हुए कभी कभी ये गलत काम भी कर जाते हैं, क्योंकि सैटर्न की फिंगर का टेढ़ा होना बताता है कि आप पटड़ी से उतर जाते हैं। तो पटड़ी से नहीं उतरना, आपने नाक की सीध पे चलना है, और अल्लाह ताला ने जो एक इंसान को तरीकाकार बताया ना कि आप मेहनत पर यकीन रखें और थोड़ा थोड़ा करके आप मुनाफा हासिल करें और थोड़े पर राजी रहें। जब इंसान शॉर्टकट ढूंढता है, जुए की तरफ जाता है, जिंदगी में बड़े बड़े रिस्क लेता है, गलत बंदों पर लालच में आके गलत बंदे पर एतबार करता है, उस वक्त आप धोखा खा लेते हैं, आप जिंदगी में धोखा खा लेते हैं। तो हमेशा लालच में आके आप धोखा खाते हैं। तो इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लालच में ना आए, और नंबर 2, ये जो उंगली टेढ़ी हो रही है ये बता रही है कि ये जिंदगी में गलत साइड पे भी जा सकते हैं, जिंदगी में गलत डिसीजन ले सकते हैं। अब वो गलत डिसीजन हर इंसान, जो ज़ाहिर अब इनकी उम्र तकरीबन 45-50 साल इनकी उम्र है, तो बंदे को तो अच्छी तरह अक्ल होती है कि यार क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। तो मैं यही इनको कहूँगा कि ज़्यादा स्पीड ना मारें, ज़्यादा तेज़ भागेंगे, ज़्यादा तेज़ की लालच करेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। तो लालच नहीं करनी इन्होंने, बिल्कुल लालच ना करें, थोड़ा थोड़ा काम करें, थोड़े थोड़े पे राजी हो जाए, तो वो अल्लाह ताला फिर इनको ज़्यादा अता करेगा। देखें, जब भी हम ज़्यादा की लालच करते हैं ना, हम शॉर्टकट रास्ते ढूंढते हैं, हम गलत रास्ते इख्तियार करते हैं, तो फिर क्या होता है, हम अपने गलत उन फैसलों की वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं। तो अगर आप इनके हाथ की लाइनें देखें तो इनकी किस्मत की लाइन भी नीचे डैमेज हुई है, ये मैं आपको बता चुका हूं। इनकी किस्मत की लाइन यहां पे ये घूमी है ना, तो मैंने आपको बताया कि ये कोई ना कोई गलत फैसला पहले भी कर चुके हैं, 40 साल से पहले भी इन्होंने बड़े गलत डिसीजन लिए हैं। अब मेरी आदत ये है कि मैं बंदे की जो पर्सनल जिंदगी होती है ना, मैं उसको ज्यादा टटोलता नहीं हूं, मैं इशारा कर देता हूं कि भाई तुमने गलत फैसले किए हैं, गलत फैसलों से तुम्हारा जीने का, तुम्हारा जिंदा रहने का स्टाइल गलत है, अपने आप को ठीक करो। बंदे को अच्छी तरह पता होता है कि मेरे अंदर क्या खामी है और मैंने किन चीजों को ठीक करना है, ठीक है ना। तो बस एक अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है कि भाई आपके अंदर जो जिस तरीके से भी आपने जिंदगी गुजारी है ना, जो भी आपका जिंदगी गुजारने का स्टाइल है,
آپ غلط ڈیسیجن لیتے رہے ہیں، غلط فیصلے کرتے رہے ہیں، اپنی زندگی کو ٹھیک ڈائریکشن پہ لے کے آئیں، سیدھی اور صاف بات ہے، قرآن و سنت پہ چلیں، 5 وقت کی آپ نماز پڑھیں، جو کچھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے آپ ان باتوں پر عمل کریں نا۔ قرآن کہتا ہے سیدھے رستے پہ چلو، لالچ نہ کرو، غریبوں کا خیال رکھو، کوئی کسی ہیرا پھیری نہ کرو، کوئی فراڈ نہ کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو، اور تھوڑے پہ راضی رہو، قناعت کرو، اللہ پہ توکل کرو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم قرآن کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہم یہ پڑھتے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں کس چیز کا حکم دیا اور کس چیز سے منع کیا ہے۔ ہمارے دماغ میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ بس ہم نے دولت حاصل کرنی ہے اور ہم نے کروڑ پتی ارب پتی بننا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنے ہی غلط رستے ہمیں کیوں نہ اختیار کرنے پڑ جائیں، ہم غلط رستے اختیار کرتے ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں سے بچے، یہ سارے تباہی کے رستے ہیں، شیطان آپ کو ہمیشہ جلد بازی بھی کروائے گا اور آپ کے اندر لالچ بھی پیدا کرے گا اور پھر آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جائے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی لالچ میں نہ آئیں، سوچ سمجھ کے زندگی کے فیصلے کریں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوں گے، زیادہ اچھے ہوں گے۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ کے دل پر اثر کریں گی، امید تو یہی ہے کیونکہ نیت میری بڑی صاف ہے، تو یقیناً میری باتیں آپ لوگوں کے دل پر اثر کرتی ہیں اور اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویسے بھی میری کمٹمنٹ ہو چکی ہے کہ میں نے اللہ کے جو پیارے پیارے بندے ہیں میں نے ان کو ضرور پیاری پیاری باتیں بتانی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی بھی بندے کے دل پہ میری بات اثر کر جائے اور وہ اپنے، اگر وہ غلط ٹریک پہ چڑھا ہوا ہے تو وہ ٹھیک ٹریک پہ آ جائے، تو میرے لیے اس سے بڑی اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ میری کہی ہوئی باتوں پر کوئی انسان عمل کرے اور وہ برائی کے رستے سے باز آ جائے، یا جو بھی اس کے اندر خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ شیطان کے رستوں پر چل رہے، وہ عیاشی کی طرف جا رہا ہے، اس کے اندر جنسی خواہشات زیادہ ہیں، وہ پٹڑی سے اترا ہوا ہے، تو بھائی ہر لحاظ سے آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ہر لحاظ سے۔ اگر ہم اگر اللہ کے نیک بندے بنے، اگر جو کچھ ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ نیکی کا رستہ ہے، آپ نے ایمانداری سے چلنا ہے، زیادہ کی لالچ نہیں کرنی، آپ نے ایمانداری سے اپنا کام کرنا ہے، تو یقین کریں یہ دنیا جو ہے نا، دنیا یہ جنت بن جائے گی اگر ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع کر دیں، غریبوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتوں کا خیال رکھیں، اپنے اندر سے زیادہ کی لالچ نکال دیں، اپنی نیت کو اچھا کر لیں، تو اور کیا چاہیے پھر؟ دنیا کیوں نہیں خوبصورت بنے گی؟ یہی دنیا خوبصورت بن جائے گی۔ تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے۔ جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، یہ نمبر میں نے اپنا مینشن کیا ہوا ہے، تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اسی نمبر پہ رابطہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی، جنم کنڈلی بھی بنے گی، آپ کا ذائچہ بھی بنے گا اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔